to Unacademy. Good afternoon. Hey guys, how are you doing? Hi Vaibhavi. Hi Kavya. Good afternoon, guys. Hello Rutuja and Shipra. Good afternoon to you also, guys. So this is Afghanistan and Taliban issue discussion class. ये 45 minutes की class है, guys, and we are going to discuss the Taliban and Afghanistan issue in this class. So चलिए guys शुरू करते हैं इस session को without wasting any time. So all the people who are going to be here for the very first time, I am Advocate Rishikesh Kate and I will be guiding you for your GK and current affairs section for various entrance exam that goes for ZAT, IFT, CMAT and particularly TISS, guys. So I am going to be live 2 times in this week on this channel, guys. One is 11 AM जहां पर हम लोग editorial analysis का class करेंगे and one is 7 PM जहां पर हम लोग टेस्ट सीरीज में आज we are going to analyze 2018 का पेपर. ओके 2018 का जीके सेक्शन एनालिसिस हम लोग आज करेंगे. हाय गुंजन, ऋषभ, देवांजना, साक्षी, रोमिक, प्रेरणा, ध्रुव, रिया, मानवी एंड दीक्षा. गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन, गाइस. ओके, so iconic subscription for CATS, you get so much into value offering, full length mocks, dedicated batches and all these hours of classes along with all the benefits of plus, guys. plus के भी जो benefits है सारे के सारे आपको iconic subscription में मिल जाते हैं with a personal coach, exclusive preparation of the OMEDs, expert guidelines and personalized test analysis. So guys, go for the subscription. The 1 year subscription for iconic goes for 39,500 and 22,554 plus. और जो लोग CAT 2022 को टारगेट करेंगे, you guys should go for the 2 year subscription plan that goes for 32,800 for plus and 59,999 for 2 years of iconic, guys. Do not forget to use this code RUSHI Rushi. That will give you an additional 10% discount on all your subscriptions. New batches, guys, 11th and 14th August से नए batches शुरू हो रहे हैं CAT 2021 के लिए. So you know the educator code already. Subscribe to the plus and iconic platform today. Enroll to these classes and enhance your learning only with Unacademy. My plus course for this month will be starting on August 23rd, 9 AM. रोज ये sessions होंगे, guys, and we will be covering Indian history part 2. Modern history को हम लोग detail में cover करेंगे in this plus course, which will be starting from 23rd of August, 9 AM. Good afternoon, Pankuri, Pooja, Rakshdeep, सब लोगों का स्वागत है guys इस session में. तो चलो शुरू करते हैं इस session को. पॉलिटी हो गया साक्षी, पॉलिटी के दोनों भी पार्ट हो गए. पॉलिटी 1, पॉलिटी 2 दोनों भी डिटेल में 2 कोर्सेज में कवर किए हैं हमने. चलो सो शुरू करते हैं. जियोग्राफी बाकी है जो अगले महीने हम लोग कवर करेंगे. ओके, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, गाइस. नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक has recently been come into talks because of the US troops withdrawing themselves. Joe Biden making a peace deal with the Taliban and saying that all the American troops will be withdrawn from Afghanistan province before 11th of September. Okay, 11th of September ka 11th of September is the 9/11 anniversary for them. So वो उसके पहले सारे troops को वो withdraw करने वाले हैं. टिस का फॉर्मेट इस ईयर चेंज हुआ है क्या? नहीं साक्षी, अभी तक तो ऐसा कुछ अनाउंसमेंट नहीं आया है TISS की तरफ से फॉर चेंज इन पैटर्न साउथ चाइना सी के वजह से. नाउ दे हैव पर्टिकुलरली, देयर इज अ रीजन. ओके, उनका रीजन है कि व्हाई दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस. इट्स देयर इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट एक बात को समझो गाइस. ओके, अंडरस्टैंड कि व्हाट इज तालिबान. ओके, तालिबान क्या है? A lot of people, yes sir, I read the Taliban seized the copter gifted to Afghanistan by India. Yes, सबसे पहले समझना है कि who is Taliban. तालिबान क्या है? A lot of people think that Taliban is a terrorist group. Okay, एक terrorist group है, जैसे अल कायदा है, आईसिस है, जैश लश्कर है. ओके, लश्कर ए तैयबा है, ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है लगता है. बट द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज इट्स नॉट, गाइस. ओके, तालिबान एक टेररिस्ट ग्रुप नहीं है. ऑल्दो दे माइट हैव अडॉप्टेड टेररिस्ट मेजर्स और मिलिट्री मेजर्स टू कैप्चर द प्रोविंसेस व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट अ टेररिस्ट ग्रुप, बट बाय बुक, ओके, बाय बुक दे आर नॉट अ टेररिस्ट ग्रुप. दे आर सिंपली एन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप. ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है
which rose to power in 1990s. Okay, 1990s में जब सोवियत यूनियन के ट्रूप्स अफगानिस्तान से चले गए, तालिबान in the Pashto language means a student. Okay, Pashto language में Taliban is known as student. Now they are an extremist group which came to power in the year 1990s when Soviet troops withdrew themselves from Afghanistan and they ruled, or they started to militarily annex the provinces of Afghanistan. However, when the US invaded Afghanistan in the wake of 9/11 and in the search of Osama bin Laden, they started invading Afghanistan, and that's when Taliban का जो presence है अफगानिस्तान में, it went down drastically. Taliban was established by USA to keep Russia at bay, right? This is, now there are a lot of conspiracies behind this, Rishabh. Okay, बहुत सारे conspiracies है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि terrorism is actually US gifted to the world, क्योंकि US का इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी. ओके, यूएस इकोनॉमी इज वॉर इकोनॉमी. जितना वर्ल्ड में झगड़े होते हैं उतना उनका इकोनॉमी ग्रो करता है. दिस इज व्हाट a lot of conspiracy theories say this thing. Okay, however अब तुमने पार्ट निकाला ही है. ओके, अब तुमने इस चीज को छेड़ा ही है, तो मैं तुम लोगों को एक चीज बता देता हूं. अकॉर्डिंग टू मी, ओके, नाउ दिस इज माय थियरी, ये मेरा थियरी है, ये कहीं पर बुक में या फिर किसी ने कहा नहीं है. दिस इज माय थियरी. यू गाइस कैन अग्री और यू गाइस कैन नॉट एग्री. दोनों भी चीज कर सकते हो आप लोग, बट जस्ट हियर मी आउट. In my view, okay, in my view, terrorism is nothing but a facet. Okay, ये सिर्फ एक फेस है. Terrorism is nothing but a face. For what? To capture the resources. Why do we have maximum terrorist attacks or maximum terrorist in the Middle East only? मिडल ईस्ट में ही ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप क्यों पैदा होते हैं? इज बिकॉज ऑफ द ऑयल. ओके, ऑयल ये एक ऐसा कमोडिटी है विच इफ यू कंट्रोल, अगर आप उसके प्रोडक्शन के ऊपर, अगर आप उसके डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कंट्रोल करते हो, you have the power to manipulate. Okay, you have the power to manipulate the world economy. Okay, वर्ल्ड इकोनॉमी को आप मैनिपुलेट करने का ताकत रखते हो अगर ऑयल के डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑयल के प्रोडक्शन में, ऑयल के प्रोक्योरमेंट को अगर आप कंट्रोल करते हो. सीरिया फॉर एग्जांपल, लेबनान, जॉर्डन, ओके, these three provinces, okay, ईरान, इराक, ओके, ईरान इराक तो फिर भी है, कुवैत, ईरान इराक के पास तो अभी भी उनका खुद का गवर्नमेंट है, बट सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, दीज आर ऑफिशियली फेल्ड स्टेट. ओके, फेल्ड स्टेट है. सऊदी अरेबिया को आप कंट्रोल नहीं कर सकते बिकॉज दे हैव गॉन फार 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 अवे फ्रॉम कैप्चरिंग. बट छोटे छोटे देश जो देखोगे, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इनके मतलब फॉर, अगर हम अज्यूम करते हैं, इफ वी अज्यूम दैट देयर आर 1000 लीटर्स ऑफ पेट्रोल अवेलेबल इंक्लूडिंग दिस 5-6 एरिया, उसमें से अगर आप 200 to 300 लीटर्स के पेट्रोल के ऊपर भी आप कब्जा जमा लेते हो तो भी आप पावरफुल होते हो. देन टू यू बिकम अ पावरफुल institution or a powerful regime establish कर सकते हो आप. So these are what Syria, Lebanon, Jordan, these are all failed state. ये सारे failed state है. failed state मतलब क्या? इसमें कोई भी recognized government नहीं है. Hey Shikha, good afternoon and welcome to the class. Okay, इसमें कोई भी recognized government नहीं है. मतलब क्या? The ISIS is controlling all these provinces, Syria, Lebanon, Jordan. ISIS पूरा का पूरा इसको कंट्रोल कर रहा है. मतलब क्या? At the same time, they have taken over the production, procurement and supply of oil in these three countries. Okay, in these three countries. कुवैत का तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा यूएसए का है. यूएस एडमिनिस्टर्स कुवैत.
it's matlab they have their government but the administration is with the USA. So ultimately USA have their hands on the oil field which are there in the Middle East. Also now they have become the largest oil producers in the entire world. Kahan se aaya? How did it all come from? It comes with this. So terrorism basically ये एक facet है, एक face है कि हम extremist group है, हम अपने हमारे रिलीजन को, हमारे ट्रेडिशन को हम प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे कल्चर को हम प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके पीछे ये सारी चीजें की जा रही है. तो फिर इन ऑर्डर टू कीप द वर्ल्ड एंगेजिंग, ओके, वर्ल्ड को एंगेज करने के लिए आप फिर कहीं तो धमाका कर देते हो, आप कहीं तो बॉम्ब गिरा देते हो, आप कहीं तो प्लेन घुसा देते हो, so that everybody thinks that terrorism is a thing that exists. Actually it exists, okay, actually it exists, but it is association with all these things. इन बाकी लोगों का इस ऑब्जेक्टिव के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये सारी चीजें की जाती है कि आप कहीं पर बम धमाके कर दो या फिर कहीं पर प्लेन को क्रैश कर दो. दिस इज ओनली टू विड्रॉ योर अटेंशन, और आपको गुमराह करने के लिए, आपको मतलब हम सब लोगों को गुमराह करने के लिए ये एक्टिविटीज एट द एंड की जाती है. मिडिल ईस्ट में ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में टेररिज्म या इंटरनल डिस्प्यूट्स है. सैडली बाय मिस्टेक इमोजी बन गया, नॉट अ प्रॉब्लम शिखा, एक सेकेंड, आप लोगों का मिस्टेक नहीं हो इसलिए मैं यहाँ पर ये बंद ही कर देता हूँ. ओके, सो दिस इज माय व्यू, ओके, दिस इज माय व्यू. However guys, you guys can differ from me, आप लोग मुझसे डिफर कर सकते हो, so there is no problem, और वो मेरे लिए ऑफेंसिव भी नहीं होगा. Agree to disagree is the most fundamental essential of a democracy. उतना तो हमें मानकर चलना ही होगा कि कोई अगर लोग हैं जिनका एक ओपिनियन है, आप उनसे अग्री करते हो या आप उनसे डिसअग्री करते हो. दिस इज इसेंशियल ऑफ डेमोक्रेसी, ये तो होना ही चाहिए. Hey Sohini, very good afternoon. Welcome to the class and good to see you in this class. तो ये चीजें हैं, okay. However, in order to read more और अच्छे से क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए गूगल पर टाइप करना हु इज तालिबान, ओके, गूगल पर टाइप करना हु इज तालिबान. सबसे पहला बीबीसी का ही एक आर्टिकल आ जाएगा, ओके, बीबीसी का ही सबसे पहला एक आर्टिकल आ जाएगा जो आप लोग उससे पढ़ सकते हो. नहीं तो एक मिनट मैं ही दे देता हूं तुम लोगों को वो आर्टिकल. आई विल जस्ट गिव यू द आर्टिकल. ये रहा उसका लिंक, यहाँ पर मैंने पिन कर दिया है. इसमें तुमको तालिबान के रिलेटेड डिटेल में पता चल जाएगा कि क्या है, हाउ डिड दे कम टू पावर, व्हाट इज देयर स्टैंड, ओके, कैसे उन लोगों ने रशिया को निकाला, फिर यूएस का क्या रोल है, हाउ दे आर टेकिंग ओवर अफगानिस्तान. सारा का सारा ये बीबीसी के आर्टिकल में आपको उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. ओके, चलो तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इस टॉपिक का. व्हाट इज द इंट्रोडक्शन? It is not a coincidence that the United States of America is exiting Afghanistan. At the same time, the focus of its foreign policy is shifting to East India. मतलब अमेरिका का जो ये है फोकस है, it is particularly shifting from Middle East to पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर जा रहा है. पहले वो सिर्फ मिडल ईस्ट पर फोकस करता था, अब वो पूरा इंडो पैसिफिक, मतलब पैसिफिक का जो पूरा वो पट्टा है, यूरेशिया से लेकर एशिया तक, ओके, साउथ ईस्ट एशिया तक, सारा वो कवर कर रहा है. अब there is growing consensus, okay, there is growing consensus that USA, instead of staying engaged in the lost war, should now urgently prepare itself for unfolding geopolitical contest with China. जैसे थोड़ी देर पहले ऋषभ ने कहा था, ऋषभ नहीं, रोमिक ने कहा था कि this is with the South China Sea, okay, South China, ऋषभ ने कहा था South China Sea, if they particularly control. Hi Sarthak, good afternoon and welcome to the class. If they particularly control the South China Sea, अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो, साउथ चाइना सी जापान से होकर नीचे की तरफ आता है, वो एशिया की तरफ आता है, ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया की तरफ आता है. So this is a safe passage
और सेफ पैसेज भी नहीं कह सकते हम लोग, दिस इज एन इजी पैसेज फॉर द अमेरिकन्स टू एंटर इनटू द एशियन मार्केट, क्योंकि फिर उनको अगर साउथ चाइना से उनको अगर एंट्री नहीं मिलती है, उनको फिर पूरा अटलांटिक घूमकर ऑस्ट्रेलिया से होकर फिर उनको इंडियन ओशन की तरफ आना पड़ेगा. सो अल्टीमेटली they rather than coming like this, okay, rather than coming like this to the Indian market, they would prefer coming like this to the South Indian market. So this is why South China plays an important role for America. ये dispute, however, this is a topic for some other day, ये किसी और दिन के लिए topic है. So defeating Taliban and nation building were part of the neo-conservative ideology, okay, promotion of democracy and interventionism in international affairs of the US, which has evidently failed, okay, which has evidently failed. However, the US can abandon the Afghan government and exit the theater, but India cannot. Now, आज का topic जो हमारा है, hi Diksha, very good afternoon and welcome to the class. Why is it necessary to divert attention and exploit the resources? Because रक्षदीप, एक चीज याद रखो, सिंपल एग्जांपल देता हूं. अब हम सब लोग एक क्लास में बैठे हैं, ओके, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट. इमेजिन योरसेल्फ इन द क्लासरूम, ओके, क्लासरूम में हम सब लोग बैठे हैं और हमारे प्रोफेसर हमको पढ़ा रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, और हमारे प्रोफेसर ने हमको एक असाइनमेंट दे दिया है कि नेक्स्ट हाफ एन आवर यू आर गोइंग टू टेल मी व्हाट आर द वेरियस थियरीज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ नेशंस, ओके, फॉर्मुलेशन ऑफ स्टेट्स की मुझे थियरी असाइनमेंट में लिख के दो. अब आप हो, मैं हूं, ऋषभ है, हर्षमीत है, सार्थक है, 5 लोग हो गए हम लोग. अब 5 लोगों में 3 ही पेन है हमारे पास, ओके, देयर आर 3 पेन्स. तो हाउएवर असाइनमेंट सब लोगों को लिखना है, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? अगर रीजनल कोऑपरेशन है, अगर हम पांचों के बीच में कोऑर्डिनेशन है और कोऑपरेशन है, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट. सार्थक बोलेगा कि सर पहले मैं एक पेज लिखता हूं, फिर आप एक पेज लिखिए, फिर ऋषभ एक पेज लिखेगा. ऐसे रोटेशन में हम लोग असाइनमेंट पूरा करते हैं, अगर कोऑपरेशन है तो. अगर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे, एवरीबडी विल ट्राई टू एक्सप्लॉइट व्हाटएवर रिसोर्सेज दैट आर देयर ना. फिर somebody will do a gimmick. मैं बोलूंगा कि देखो वहां के बच्चों में, फिर मैं क्या करूंगा, सार्थक के बीच में और ऋषभ के बीच में झगड़ा लगा दूंगा, और जब तक वो लड़ रहे हैं आई विल टेक दैट पेन एंड आई विल राइट दैट असाइनमेंट. it's very simple that way to understand कि why if you want to exploit a resource, तुम क्या करते हो, तुम किसी का ध्यान बटाते हो और फिर उसको एक्सप्लॉइट करते हो, ताकि तुम्हारे एक्सप्लॉइटेशन में या फिर एक्सप्लोरेशन में डिस्टरबेंस ना हो या फिर इंटरवेंशन ना हो. समझ आया? 5 पेन अपने पास लेकर बाकी लोगों को भेज दो, ऐसा भी कर सकते हैं. एग्जैक्टली मैं बोलूंगा सर को, मैं बोलूंगा कि सर पेन ही नहीं था, बट मैं क्या करता हूं, वो तीनों पेन इकट्ठा करता हूं और फिर बिड करता हूं. जो सबसे ज्यादा बिड करेगा उसको मैं बेच दूंगा, ओके, उतना में मैं प्रॉफिट निकालूंगा. इट्स दैट वे, ओके, सिंपल है, लॉजिकल है. इंटरनेशनल अफेयर्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशन बहुत अंडर एस्टिमेटेड टॉपिक है. ये एक्चुअली स्कूल कॉलेजेस में अच्छे से पढ़ाना चाहिए, बट वी आर नेवर टॉट ऑफ this particular thing. It's when you do a graduation in that particular topic, तभी तुम लोगों को एक broad horizon खुल जाता है आपके सामने कि अरे यार ऐसा भी होता है, ये तो कभी हमने सोचा ही नहीं. Okay, it's that way. अब this is one issue. Now अफगानिस्तान का गवर्नमेंट का फॉल, rise of Taliban and US exit is US probably उनका एग्जिट कर सकता है because they have nothing to lose in that era. क्योंकि ऑलमोस्ट 20 साल से वो लोग उस एरिया में है, एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज ऑफ दैट एरिया, मार्किंग देयर प्रेजेंस इन द मिडिल ईस्ट, सो दे डोंट पर्टिकुलरली हैव नथिंग टू लूज. बट यहाँ पर इंडिया इज एट अ वल्नरेबल सिचुएशन फॉर मल्टीपल रीजंस. ओके, अलग अलग रीजंस के लिए इंडिया जो है वो वल्नरेबल है. पाकिस्तान का इशू है, पाकिस्तान का थ्रेट है, चाइना का थ्रेट है, बाकी सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज का हम लोगों को थ्रेट है.
So this is an issue which is directly going to impact India's foreign policy and also the national security, so to say. Okay, investment in infrastructure such as dam. That is how we have marked the project. Okay, that is how we have marked the project. समझ आया? ओके अब दिस इज द यूएसएस चेंज्ड पॉलिसी. ओके, ये यूएस का चेंज्ड पॉलिसी है. नाउ यूएस मे हैव रिट्रीटेड फ्रॉम अफगानिस्तान एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रैंड स्ट्रेटजी. ओके, उनका स्ट्रेटजी क्या है? ग्रैंड स्ट्रेटजी इज टू टेक ऑन चाइना इन द मैरीटाइम एशिया. ओके, मैरीटाइम एशिया में उनको इंटरेस्ट ज्यादा है, इन विच दे नीड इंडियाज इन्वॉल्वमेंट. ओके, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट उनको चाहिए because now in this case also India might find it tempting to join the marks, especially after China's aggression on the line of actual control. Okay, China के और हमारे बीच में lag क्या? is there a lag? lag नहीं है सार्थक दादा. Okay, now this is a tempting proposal from USA. अब यूएस का फोकस जो है वो मिडल ईस्ट से निकलकर वो चाइना की तरफ आ गया है. एंड सिंस इंडिया इज वन ऑफ द मेजर रीजनल पावर्स इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, ऑफ कोर्स यूएस वुड वांट इंडियाज इन्वॉल्वमेंट देयर. एंड इंडिया विल आल्सो बी टेम्पटिंग इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑलरेडी हम लोग एक्सटर्नल एग्रेशन में इन्वॉल्व है चाइना के बाद. सिंस द गैल्वन वैली पिछले साल से जो एक्सटर्नल एग्रेशन चल रहा है, तो we would want to get back to China at some instant. Sir, are they planning set up any base in Ladakh UT? They have always been trying to do that, na? Romik, this is how they actually intrude. Now Ladakh का topography अगर हम लोग देखेंगे तो there are barren lands. Okay, kilometers तक barren land है लद्दाख में. So once they come down from the mountain, एक बार वो mountain से successfully नीचे आ जाते हैं, if they set up a post, we directly come into the line of sight, and we cannot do anything unless there are diplomatic talks involved between the government of India and the government of China. However, this is a topic for some other day. Okay, ये किसी और दिन के लिए ये topic है. Let's stick to this topic for now, Romik. Okay, but we will discuss. हम चाइनीज एग्रेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा कि अमेरिका का जो ये चीज है विच इज अ टेम्पटिंग फॉर इंडिया. अमेरिका स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू चाइनाज राइज इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी विच इज एम्ड एट कंटेनिंग चाइनाज राइज एंड challenging its high functioning single party dictatorship. Recent report says that they are trying to come down to a peace settlement. Of course they have to come down to a peace settlement क्योंकि global front पे आप you cannot look bad on the global front, right? Now India is a country fortunately which has cordial relations with everybody in the world. When we had the Congress regime also, तब भी हमारे international relations काफी अच्छे थे. Talking about Narendra Modi's regime also, he is also extraordinarily maintained cordial relations with the entire world. So India, everybody is going to support India अगर चाइना के खिलाफ खड़ा होता है तो. So China needs to get in good terms with India अगर उसको global front पर they want to function on the global front. Whereas now this is an absolutely important thing to check कि अब US is also coming down. Okay, US भी आ रहा है to contain China's rise. मतलब यूएस और चाइना के बीच में जो पहले कोल्ड वॉर चल रहा था, अब वो डायरेक्ट वॉर होने वाला है, बी इट मिलिट्री वॉर और बी इट डिप्लोमेटिक वॉर. यूएस इज डायरेक्टली गोइंग टू एंगेज विद चाइना हियर टू कंटेन चाइनाज राइज एंड ऑल्सो चैलेंजिंग इट्स हाई फंक्शनिंग सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप. ओके, उसको वो चैलेंज करने वाला है. एंड आफ्टर नाउ ऑल्सो किसी ने थोड़ी देर पहले क्वाड के बारे में कहा था. यस, US actually wants India to play an important role in the Quad bloc, but there is one problem. Okay, उसमें एक ही problem है कि India, unlike the other members, अब हमारे Quad bloc में कौन कौन है? एक इंडिया है, US है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है.
ओके, ये 4 कंट्रीज का ब्लॉक है। हावेवर जापान को अगर हम बाजू में रखते हैं, इंडिया इज द ओनली कंट्री ना विच हैज which has its power in the regional area. एशिया में इंडिया का पावर ज्यादा है, so it cannot contest directly. ओके, उसमें वो डायरेक्टली कंटेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर चाइना के अगेंस्ट वी विल बी एट अ वल्नरेबल पॉइंट. ओके, हम लोग एक वल्नरेबल पॉइंट में वहां पर आ जाएंगे if we directly do that. However, US is playing very strategically here. Okay, यहाँ पर US जो है वो बहुत strategically play कर रहा है. For example, US has engaged itself into another quad block. Okay, हमने थोड़ी दिन पहले ही पढ़ा था. US है, पाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और अफगानिस्तान है. So US has its hands on both blocks. मतलब ऐसे न वैसे they are going to benefit from whatever the decisions are taken under the block. तो ये एक बहुत ही स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है अमेरिका का into the geopolitical scenario. And after the costly and prolonged military interventions in Afghanistan, the US has begun to see no more interest in resolving the conflicts there. So why did the USA change its priority? Sir, US सब जगह में मजे लेता है. जब उसका इंटरेस्ट था सोवियत इंडिया के खिलाफ, सोवियत यूनियन के खिलाफ, तब तालिबान एंड अलकायदा खड़ा करा और अब इंटरेस्ट खत्म हो गया आफ्टर. एग्जैक्टली दैट इज व्हाट इट सेड हियर. ओके, तो वो बताने के लिए वो ऐसा है कि इट इज एन एक्सपेंसिव मिलिट्री इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान. हाउएवर दे हैव शिफ्टेड देयर फोकस. ताइवान इशू भी इफेक्ट कर सकता है चाइना के अगेंस्ट. यस, so this is about US's change priorities. Is everybody clear with this? Yes, दीक्षा ने कुछ पूछा है. एक मिनट दीक्षा, I'll just check. क्वाड ब्लॉक में क्या डिसीजंस होते हैं? स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, ट्रेड रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, यही डिसीजंस होते हैं. फॉर एग्जांपल, क्वाड ब्लॉक इज नथिंग बट लाइक अ स्टडी ग्रुप. हम लोगों का जो स्टडी ग्रुप होता है, मतलब मेरा तो नहीं, आप लोगों का. आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू स्टडी सोलो. तो मान लो कि दीक्षा का, सयंतिका का, वैभविका और सोहिनी का 4 लोगों का एक ग्रुप बन गया है. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डिस्कस कि टिस्नेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, फिर उसको लिस्ट आउट किया. टिस्नेट के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन से हैं, उसको लिस्ट आउट किया. टिस्नेट के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज कौन से हैं, उसको लिस्ट आउट किया. सो अल्टीमेटली कॉपरेशन के साथ आप लोग एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ बनते हैं ना. सो दिस इज व्हाट आर these are the decisions that are taken in the quad group also. ओके, समझ आया रिक्शा? ग्रेट. चलो फिर इंडिया प्रेजेंस इन अफगानिस्तान देखते हैं गाइस. ओके, व्हाट इज इन हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया प्रेजेंस इन अफगानिस्तान. सबसे पहले तो बैरिंग अ ब्रीफ पॉज इन 1990s. ओके, 1990s में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में एक पॉज आया था. इंडिया हैज हिस्टोरिकली एंजॉयड गुड टाइज विद अफगानिस्तान and it goes way back to 1950. Okay, 1950 में जाता है under the Treaty of Friendship. India's interest and influence suffered when the Taliban, which is backed by Pakistan, okay, Taliban which is backed by Pakistan, this is the major concern. India के लिए ये major concern है. सर मेरे हिसाब से क्वाड चाइना के लिए बनाया है, तो काउंटर चाइना डोमिनेशन ऑन द वर्ल्ड, इट हैज सर्व द पर्पस ऑफ इंडिया फुली. ऑफ कोर्स कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्टिव, वही उसी चीज के इसमें वो उसमें फंक्शन करेंगे. तो ऑफ कोर्स इट इज टू. और यहाँ पर पिछले स्लाइड में हमने देखा कि क्लियरली बताया गया है ना, इट हैज बीन क्लियरली सेड कि बॉस चाइना के डोमिनेंस को कम करने के लिए ही यूएस हैज शिफ्टेड देयर पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक. ओके, सो 1996 में तालिबान ने काबुल को कैप्चर कर लिया था 1996 में. So, but India was back in action soon as the Taliban were ousted from power after the US invasion in 2001. And India has made huge investment and commitment ever since, which run into over USD 3 billion and cultivated strong economic and defense ties with Afghan government. Who is the current Afghan president, guys? Afghanistan के current president कौन है? Who is the Afghan's current president?
Ashraf Ghani, very good. Ashraf Ghani, very good. However, एक चीज ध्यान में रखो guys, please take into consideration this one point that even though, okay, even though, चलो मैं अगले इसमें बताता हूँ आप लोगों को. Have you guys understood this? ये पार्ट समझ में आ गया है सब लोगों को? Everybody understood this? Okay. अब समझते हैं हम लोग. What are India's options in Afghanistan? Okay, इंडिया का ऑप्शन क्या है अफगानिस्तान में? सबसे पहला तो टॉकिंग विद तालिबान. अब since Taliban is not a terrorist group, India can indulge in negotiation talks with Taliban. But even though America has always been on negotiation phase with the Taliban, India has never favored this. Okay, India ने कभी भी इस चीज को फेवर नहीं किया है. India has always been in support of Afghan owned and Afghan processed thing. Okay, it has always recognized Afghanistan government rather than recognizing Taliban as an extremist group in that particular region. अब इस चीज को और अच्छे से अगर आप लोगों को समझना है ना, या फिर समझ सकते हो, इफ यू गाइज हैव यू गाइज सीन फैमिली मैन 2? आप लोगों ने फैमिली मैन 2 देखा है क्या? उसमें श्रीलंका के अंदर, ओके, श्रीलंका के अंदर एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाया होता है शेखरन ने एक एग्जाइल गवर्नमेंट बनाया होता है ना. दे आर फाइटिंग फॉर व्हाट? They are fighting for recognition. Okay, they are fighting for recognition. उसमें बताया ना कि France is thinking of recognizing our government in exile. हमारे government in exile को वो recognize करने वाले हैं. उसी मॉडल को आप अफगानिस्तान में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो या फिर रेप्लिकेट कर सकते हो. रिफ्लेक्ट नहीं, रेप्लिकेट कर सकते हो. बट द प्रॉब्लम हियर इज, ओके, अगर हम यहां पर देखते हैं कि इंडिया इफ इट इन्वॉल्व्स विद तालिबान, ओके, which at this particular time it seems to be inevitable. सर, यूएस का इन्वेजन कोई नई बात नहीं है. यूएस इन्वेड्स कंट्री एज पर हिज इंटरेस्ट, एज पर हर इंटरेस्ट. जतवाड़, US invaded Iraq. If you notice, the number of troops increased in Afghanistan in 1990. That's why they captured Kabul in 1996. It is absolutely correct. They have, मतलब US का presence in the Middle East is not 20 years back. It goes way beyond that. Okay, उसके पहले से ही US का interest जो है जाता है. However, this was only a reason. ये उनको एक reason मिल गया to have their bases in different parts of the Middle East. Okay, so talking to Taliban is not which is not inevitable today at this point. अगर हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट का जो प्रेजेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है. So talking with Taliban seems like inevitable, but India has to make sure, okay, India has to make sure कि पाकिस्तान का जो ऑटोनॉमिटी है ओवर तालिबान, उसको तालिबान ने छोड़ देना चाहिए. So the influence that Pakistan has over Taliban, which is highly unlikely to happen, क्योंकि जब तालिबान ग्रो कर रहा था, it was being supported by the Pakistanis. तो ये अभी बहुत unlikely होगा. And since both of these countries, or one organization and one country, Pakistan and Taliban, they belong to the same religious sentiments. Okay, उनके same religious sentiments है. तालिबान ने भी 1990s में ये कहा था ना कि अगर हम पावर में आते हैं तो फिर शरीयत लॉ को हम जैसे का वैसा ये करेंगे. We will not include any types of reforms. हम किसी भी reforms को include नहीं करेंगे. We will implement the Shariat law as and how it is mentioned. So and that is one of the reasons why both the countries are on the same line. ISIS and army runs Pakistan. Correct. Because they fund them a lot. Pakistan का economy already poorly functioning है. So they receive funds from these types of organization. इसी types of organization से वो fund को gather करते हैं. Okay.
Now, so this is one option that is left with India, that is talking with Taliban. Okay, but पाकिस्तान के रोल को यहाँ पर डिस्कस करना काफी इंपॉर्टेंट होगा. नेक्स्ट, टेकिंग अफगान गवर्नमेंट इन कॉन्फिडेंस. ओके, अफगान के गवर्नमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेना, ये एक स्मॉल एक्टिविटी नहीं होने वाला है. इन ऑर्डर टू एंगेज अफगानिस्तान, जिसका भी कोई गारंटी नहीं है, against the Taliban, it is not going to give us the desired outcome. वो हम लोगों को desired outcome नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी अफगानिस्तान का गवर्नमेंट खुद ही जो है वो काफी वीक है. ऑलमोस्ट 90% ऑफ अफगानिस्तान इज बीन कैप्चर्ड बाय द तालिबान. सिर्फ अभी काबुल के ऊपर कब्जा करना रह गया है उन लोगों का. दे आर कॉन्स्टेंटली टारगेटिंग द अफगानिस्तान मिलिट्री with the help of various organizations in the world. Also, a lot of Afghani military also, they are taking a step back. They are retreating. वो अपना पोस्ट छोड़कर वो पीछे हट रहे हैं, because they know they are not in a position to stop the Talibanis or give a staunch resistance to the Talibanis forces which they are trying to gain the territory. Okay, तो ये भी ऑप्शन कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं करता है. However, agar Afghanistan is stronger, if Afghanistan government pulls itself together and if it needs any kind of aid, agar Afghanistan को India की जरूरत पड़ी, तो शायद that is where we can help the Afghanistan a little bit by supporting the Afghan military. Okay, Afghan military force को हम support कर सकते हैं and try to gain the territorial dominance which was created by Taliban. जैसे कश्मीर के साथ हुआ था. रोल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंसी इन यूएनएससी, काउंटर टेररिज्म के लिए वो कर सकते हैं ऋषभ. दैट वे काउंटर टेररिज्म के लिए वी कुड डू इट. ओके, जैसे कश्मीर के साथ हुआ था. ओके, जैसे कश्मीर के साथ हुआ था, वी हेल्प्ड राजा हरि सिंह when Pakistan military forces and Azad Kashmir forces, they started to militarily annex. Sardar Vallabhbhai Patel और जवाहरलाल नेहरू ने भेज दिया था ना. They had sent our Indian army to Pakistan, to Jammu and Kashmir and saved Jammu and Kashmir. उसी टाइप का सिनेरियो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं. We can support the Afghan military. थोड़ा बहुत auxiliary units Indian army के उनके पास भेजकर we can try to reduce down the dominance of Taliban. And once Afghanistan stands on it, Afghanistan government stands on its leg again, फिर इस प्रॉब्लम को एक अलग वे से सॉल्व किया जा सकता है. ओके, देन हमारे सर, मगर अफगानी पीपल सी दिस सिचुएशन टू सेटल दिस पॉलिटिकली. दे नेवर वांट वॉर. इट्स ओनली फॉर अफगान गवर्नमेंट हु नीड्स मिलिट्री सपोर्ट. ऑफ कोर्स, बट कैसा हो रहा है, अफगानिस्तान में एक सिविल वॉर हो रहा है. ओके, अफगानिस्तान इज गोइंग थ्रू अ सिविल वॉर which is where the victims, okay, where the victims are not only the government people but also the civilians. Okay, civilians भी उसके victim ही हो रहे हैं. So we need to solve this problem, or the world needs to pay their attention in order to solve the problems, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा exploitation हो रहा है नॉर्मल लोगों का भी. ओके, सो इंडिया का शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल को भी कंसिडर करना चाहिए, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर. जो चीजें हैं, सिक्योरिटी मतलब काउंटर टेररिज्म के अगेंस्ट सिक्योरिटी, और जो इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया ने किए हैं, ओके, दिस कुड बी एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म गोल, एंड लॉन्ग टर्म गोल इज टू ब्रिंग आउट अ परमानेंट सॉल्यूशन फॉर दिस पॉलिटिकल क्राइसिस इन द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान. इसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए. फिर रीजनल सॉल्यूशन, वी नीड टू डू इट थ्रू रीजनल कोऑपरेशन. रशिया के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में जाओ, चाइना के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में जाओ, पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टॉक्स में जाओ, एंड कन्विंस दिस मेजर सुपर पावर्स टू एंगेज इन अफगानिस्तान, ताकि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को वो सबसाइड कर सके या फिर सबड्यू कर सके. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस दैट इज देयर विद इंडिया. इंडिया में फाइनेंशियल बर्डन एंड मिलिट्री लॉस होगा ना अगर इन्वॉल्व हुए तो. ऑफ कोर्स इन्वॉल्व हुए तो वी विल डेफिनेटली सफर हियर. ओके, हमको सफर तो होगा, बट आई थिंक दिस इज अ बेटर ऑप्शन
rather than tackling Taliban at the first place, तालिबान को पूरा कैप्चर देकर पाकिस्तान के साथ एसोसिएट होकर वी पुट जम्मू एंड कश्मीर और ज्यादा वल्नरेबल हो जाएगा. It will be more vulnerable. This is what I think. Okay, this is what I think. However, you guys can differ from me. Okay, तो support from रशिया है. सोवियत यूनियन ने पहले ही अफगानिस्तान में अपने ट्रूप्स भेजे थे, तो once more we can take support from Russia and try to subdue it. Okay, and last one is born homie with China. Okay, born homie with China, particularly it should go in negotiation with China and find out a political solution or a political settlement that will bring stability in Afghanistan. This is what are the options that are with India in terms of the Afghanistan issue. समझ आया सब लोगों को? Everybody understood? Everybody समझ लगा है? Okay. कल हम लोग डिजिटल चैलेंज ऑफ सिविल सोसाइटी के बारे में बात करेंगे. ओके, डिजिटल चैलेंज ऑफ सिविल सोसाइटी इज टुमारोज टॉपिक. ये कल का टॉपिक है एंड टुमारो दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन. फिर हम लोग डायरेक्ट इश्यू डिस्कशन अगले महीने में करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक I will be not there for almost 4 days for 1 PM session. 1 PM session के लिए 4 दिन में नहीं रहूंगा, because since it is my birthday week, so the weekend has gone. 1-2 दिन शायद रहूंगा मैं. I will be there for a couple of days. So we will start test series in that. उसमें हम test series कर देंगे. Okay? चलो, so this is the conclusion. Okay, ये conclusion है इस topic का. India as would be impacted by the consequence of the American withdrawal. India has to work with the Eurasian powers to protect its interest and stabilize Afghanistan. And if India remains active and patient too, many opportunities could open up in the new Afghan phase. But उसके लिए we have to be पेशेंट. ओके, उसके लिए पेशेंट रहना पड़ेगा कि तालिबान क्या करता है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या करता है, हाउ डू दे टेक ओवर, व्हाट विल बी देयर न्यू पॉलिसीज, हाउ शुड इंडिया रिएक्ट टू दैट. ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी. गॉट इट गाइस? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? दिस इज द एंटायर टॉपिक फॉर टुडे. ओके, ये आज का टॉपिक था. शाम को मिलते हैं 5 बजे फॉर डेली जीके अपडेट्स क्लास. ओके, डेली जीके अपडेट्स क्लास के लिए मिल सकते हैं हम लोग. ओके, चलो. नो डाउट्स इन दिस सेशन, राइट? सेशन में कोई डाउट नहीं ना? जोतवाड़, यू कैन डीएम मी. आप मुझे अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर डीएम कर सकते हो. You can DM me. Okay, chalo. So before we part ways, guys, CAT Iconic subscription one-on-one live mentorship program. You have so much of benefit under the Iconic subscription. Also limited edition period चल रहा है for CAT aspirants. You get 12 months of subscription. You get 3 months for absolutely for free, and 24 मंथ सब्सक्रिप्शन पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल रहा है. सो गो फॉर द सब्सक्रिप्शन गाइस. द 1 year सब्सक्रिप्शन फॉर आइकॉनिक गोज फॉर 39,500 रुपीज एंड 22,550 फॉर 1 year ऑफ प्लस. और जो लोग कैट 2022 को टारगेट करेंगे, यू गाइस शुड गो फॉर द 2 year सब्सक्रिप्शन प्लान दैट गोज फॉर 32,800 and 59,999 फॉर 2 years of Iconic. And do not forget to use this code RUSHIRUSHI. That will give you an additional 10% discount on all your subscription. Sir, where can I see your previous classes given? I newly joined an academy. Rakshdeep, आप मेरे प्रोफाइल पर जाइए on the Unacademy learning application.
and check out all my special classes and plus classes. मेरे प्रोफाइल पर आपको सारा कुछ दिख जाएगा, upcoming classes, completed classes, सब कुछ आपको दिख जाएगा. Okay, just search Rishikesh Kate on Unacademy. Okay, Rishikesh Kate, search करो. All right. Thank you all for joining me for this session, guys. Have a very good day ahead. I will see you at 5 p.m. for the daily GK updates class. Till then, you guys take care. Let's crack it. Bye bye, guys.